नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर के पठानकोट बाईपास के नजदीक ट्रक और कार में हुई भीषण टक्कर, 4 लोगों की मौत, 2 घायल। तरन के गांव लालू घुमन में पंचायती चुनाव की रंजिश के तहत मौजूदा सरपंच की गोली मारकर की हत्या, 1 घायल। भगवान महावीर जैन आराधना केंद्र ने श्री महावीर जैन भवन में करवाया 50वां संयम स्वर्ण समारोह संयमोत्सव। दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज और लुधियाना के प्रसिद्ध उद्योगपति जवाहर ओसवाल की बतौर मुख्य अतिथि शिरकत। और अब हलचल विस्तार से। जालंधर के पठानकोट बाईपास के पास भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा रणवीर प्लाजा के पास हुआ, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक और कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और मृतकों को बाहर निकालने के लिए क्रेन की मदद लेनी पड़ी। मिली जानकारी के अनुसार कार में कुल 6 लोग सवार थे। इस हादसे में एक बच्चे समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ट्रक ने डिवाइडर को पार करते हुए दूसरी लेन पर आकर कार को टक्कर मारी, जिससे ये हादसा हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचे। मृतकों और घायलों को क्रेन और एम्बुलेंस की मदद से बाहर निकाला गया। घायलों को इलाज के लिए नज़दीकी अस्पताल भर्ती कराया गया। तो वहीं हादसे के चलते नेशनल हाईवे पर भारी जाम लग गया। वहीं ट्रक चालक हादसे के बाद मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। ਇਹ ਅਟਗਾ ਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵਰਨ ਅਰੋੜਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਮਹਿਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਦਾਖਲ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ ਪੂਰਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 7 ਮੈਂਬਰ ਸੀ, 3 ਲੇਡੀਜ਼, 2 ਬੱਚੇ ਤਾਂ 2 ਜੈਂਟਸ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ, ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲੋਡ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫੇਟ ਵੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆ ਆਊਟਸਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਪਲਟ ਗਈ। ਸੜਕ ਦੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਗੱਡੀ ਪਲਟ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਸ ਗਈ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ, ਪੱਤੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਪੂਰਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤੇ 2 ਜਨਾਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹਾਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਬਚਣ। ਪਰ ਜੋ 4 ਜਣੇ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸੱਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਆ। ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਪਲਟੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਟਰੱਕ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਪੂਰਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ ਚੱਲਦਾ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਲੰਧਰ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਹਾਈਵੇ ਇਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕੀਤੀ ਆ। ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਊ। ਲੇਕਿਨ ਹਸਪੀਟਲ ਪੁੱਜ ਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਆ, ਡਰਾਈਵਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਮੂਹਰੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਗੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਰਨ ਅਰੋੜਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਮਹਿਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਦਾਖਲ ਸੀਗਾ DMC 'ਚ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। रिश्तेदार का पता करने वास्ते सारा परिवार जा रहा है। तरन के गांव लालू घुमन में पंचायती चुनावों की रंजिश के चलते मौजूदा सरपंच को गोलियां मारकर कत्ल करने का मामला सामने आया है, जबकि इस दौरान एक व्यक्ति घायल हो गया। वहीं मृतक सरपंच की पहचान प्रताप सिंह के तौर पर हुई है, जो अभी भी सरपंच बना था और आम आदमी पार्टी से संबंध रखता था। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। इस संबंध में जानकारी देते हुए मृतक सरपंच के पारिवारिक सदस्यों ने बताया कि सरपंच प्रताप सिंह पर मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति द्वारा गोलियां चलाई, जिस कारण प्रताप सिंह की मौत हो गई, जबकि बुद्ध सिंह नामक एक व्यक्ति घायल हो गया। पारिवारिक सदस्यों ने बताया कि सरपंची चुनाव के समय
उनके विरोधी पार्टी के लोगों द्वारा उन्हें धमकियां दी जा रही थी। भिकीविंड से हलचल के लिए भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट। प्रताप सिंह ढिल्लों। की गलबात हुई सर गलबात सरपंच बने सीगे ते सानू धमकियां अगे भी आउंदियां सी ते ये जिहड़ी पार्टी धमकियां दवाउंदी सी, एक ते रणजीत सिंह सन ऑफ वसन सिंह आ, एक रणजीत सिंह सन ऑफ जसवंत सिंह आ ते एक है निशान सिंह सन ऑफ देसा सिंह आ, एक देसा सिंह सन ऑफ सलखन सिंह आ, एक बलराम सिंह सन ऑफ भजन सिंह आ। होर भी 2-3 बंदे जिन्हां ने सानू बहुत ज़्यादा धमकियां दित्तियां ते आंदे ही तुसीं सरपंच बन गए हुण तुहानूं छड्डना नहीं। ते ओहो गल होई अज सवेरे प्रोग्राम ते आए आ भोगदे ते मरगदे ते इत्थों प्रशादा पानी छक के ते इधर अंकल बुद्ध सिंह के घर मोटरसाइकिल लगा, उधर जान डा बुद्ध सिंह ते गोलियां चलातियां, फायरिंग करदी। कोई समय की ढीक च ही कोई बंदा। मेरा नाम मेजर सिंह सर, पिंड लालू घूमन जी। गल जी साडी मदद का भोग सी अज इत्थे भी उन्होंने जी भोग पाया ते सरपंच साहब ने सारे पिंड के नाम आसरे आए थे। कोई अनमोल छाती आया वा कि मगरों आ के उन्हें वाह गोलियां की वर्खा करती, सरपंच साहब की डेथ हो गई। एक बहुत सिंह इलाज लिए भेजा है हॉस्पिटल, वो गोली लगी लत्त दे विच। सरपंच साहब का नाम सरपंच साहब प्रताप सिंह सरपंच नवे मौजूदा सरपंच जी, आम आदमी पार्टी वालों। किन्ने के जने जेडे गोली चलाउण वाले? इकल्ला ही इको बंदा। हाँ जी, कुछ पता लगा तुहाडे को उन्हां दी रिवॉल्वर गोली? नहीं रिवाल्वर तो साडे कोल जी, असीं पुलिस नूं दे दित्ता वा, गोलियां भी साडे कोल जी, वो ही दे दित्तियां उन्होंने ते लाश बंदे दी इत्थे पड़ी है। कोई थ्रेट थ्रूट तो नहीं हुई पहले? हाँ जी, कोई गलबात नहीं कोई गलबात नहीं, इन्हां दा कोई दुखवार नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किसी नाल पिंड विच हैगा। उन्हां दा किन्ने बंदे जख्मी होए? होर 4 बंदे जख्मी होए जी। अच्छा, एक बंदे दी गोलियां? हाँ जी। भगवान महावीर जैन आराधना केंद्र 343 न्यू जवाहर नगर की ओर से 50वां संयम स्वर्ण समारोह संयमोत्सव का आयोजन रविवार को श्री महावीर जैन भवन नजदीक कपूरथला चौक में किया गया। समारोह में साध्वी प्रगुणा श्री जी महाराज एवं साध्वी प्रिय धर्म श्री जी महाराज, प्रिय रत्ना श्री जी, प्रिय सुधा श्री जी ने शिरकत कर आशीर्वाद दिया। साथ ही इस ऐतिहासिक एवं मंगलमय चातुर्मास की संपूर्णता के साथ साथ गुरुदेवों के आशीर्वाद से साध्वी प्रिय धर्मा श्री जी ने संयम जीवन में दीक्षा पर्याय के 50 बसंत संपूर्ण किए हैं। उनके संयम के 50 वर्ष का महोत्सव मनाने का सभी को सौभाग्य भगवान महावीर जैन आराधना केंद्र के संघ द्वारा करवाए गए समारोह के दौरान हासिल हुआ। इस आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विजय, नाहर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज लुधियाना व श्री मणि लक्ष्मी जैन तीरथ लुधियाना के चेयरमैन जवाहर ओसवाल और धर्मपत्नी अभिलाष ओसवाल ने शिरकत की। ज्योति प्रज्वलित कर इस समारोह की शुरुआत की, जिसके बाद गुरुवंदन, मंगलाचरण, सरस्वती वंदना, नवकार नृत्य, भजन, घूमर, काली युवा महिलाओं, बच्चों एवं युवाओं द्वारा प्रस्तुति दी गई। इसके बाद इस सभा के प्रमुख प्रवक्ता हिमांशु जैन और श्री आत्म वल्लभ महासंघ दिल्ली के महामंत्री अशोक जैन ने साध्वी जी महाराज साहिब की जीवन शैली के बारे में सबको अवगत करवाया। उपरांत महासंघ द्वारा संरक्षक जवाहरलाल ओसवाल एवं अन्य सदस्यों ने मिलकर साध्वी जी महाराज साहिब को मान पत्र देकर उनसे आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर भगवान महावीर जैन आराधना केंद्र के प्रधान कमल जैन, उप प्रधान मोहिंदर पाल जैन, महामंत्री विनेश जैन, निपुण जैन, कोहिनूर, कोषाध्यक्ष शीतल जैन, रविकांत जैन, दिनेश जैन, राजन जैन, अनिल जैन, लास्को, एडवोकेट पुष्प जैन, लोकेश जैन, सुनील जैन, अंकुर जैन, रजत जैन, अभिषेक जैन, आदित्य जैन, एसएस जैन सभा के प्रधान सतपाल जैन, श्री आत्मानंद जैन सभा जालंधर के प्रधान प्रदीप जैन, रुचि जैन, डिम्पल जैन, उषा जैन, आदर्श जैन, अनु जैन, मनीता जैन, इंदु जैन सहित समूह जैन समाज उपस्थित रहा। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट।
सात्विकता से परिपूर्ण प्रसन्न, हृदय में एक अजब किस्म की प्रसन्नता की अनुभूति हो रही। 50 साल का दीक्षा भरा है और इस 50 साल की उसका इम्पैक्ट जानना हो तो मैं अपना एग्जाम्पल देके बताता हूँ कि मेरे दादाजी ने साधु जी महाराज के दर्शन किए, मेरे पिताजी ने किए, मैंने किए, मेरे पुत्र ने किए और मेरे पौत्र ने किए। 5 पीढ़ियां इस 50 साल के अंदर, 5 पीढ़ियों तक एक जो संदेश है संयम का, चरित्र का, त्याग का, जैन साधु की साधुता कैसी होती है, वो एक संदेश जाता है। तो 50 साल का वक्त था। शासनपति भगवान महावीर स्वामी ने धर्म के 2 मार्ग बतलाए, देशभक्ति और सर्वभक्ति। देशभक्ति से सर्वभक्ति की ओर जाना यानी कि जन्म से मुक्ति की ओर जाना। हम सब आत्माएं देशभक्ति के अंदर हैं और संयमी आत्माएं सर्वभक्ति के अंदर हैं। शास्त्रकार फरमाते हैं चारित्र खरु धम्मो, चारित्र ही धर्म है, दर्शनम मूलो धम्मो, दर्शन ही धर्म है। वास्तव में हकीकत में चारित्र ही धर्म है। चारित्र मुक्ति का असाधारण उपाय, साधारण नहीं असाधारण उपाय। एकमात्र यदि मुक्ति का उपाय है तो वह चरित्र है। सम्यक ज्ञान नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, मुक्ति का यदि कोई उपाय है तो सम्यक चरित्र है। शीतल बेन जी, जिनका कि हमारे जैन समाज के साथ ऐसा रिश्ता है कि कोई भी कार्य, किसी तरह का भी कार्य उनके पास लेके जाते हैं तो वे सहर्ष अपनी सेवाएं देने के लिए जितनी मर्जी व्यवस्था हो वे, क्योंकि उनका स्नेह हमारे गच्छाधिपति जी के साथ। और इसके साथ साथ जब गुरुदेवों का यहाँ पर 7 जुलाई को चतुर्मास हुआ तो अगर सबसे पहले किसी के घर चरण डाले तो हमारे बाबू शीतल बेन जी और उनकी धर्मपत्नी वाली बेन जी और समूह परिवार के नाते उन्होंने भी आज समय निकालकर इस हमारे इस समागम में अपना आशीर्वाद देने पधारे हैं। मैं उनका भी स्वागत करूंगा और इसके साथ साथ पूरी प्रेस का तो मैं धन्यवाद करूंगा ही, लेकिन विशेष करके दैनिक सवेरा का हमारी तरफ से चूक हो जाती है, लेकिन इनके पत्रकार हमारे एक इंच पर कवरेज करने के लिए तैयार रहते हैं। इन पूरी अखबार में कवरेज बाबूजी की अखबार में हर समय रहती है, हमें याद भूल जाता है, लेकिन इनकी अपने पत्रकारों को इतनी जबरदस्त चेंज करते हैं कि वो नहीं चूकते। सुबह का मेरे को उसका फोन आ गया, बाबूजी वेन्यू चेंज करता सानू दसिया नहीं, तो मैं कह सकता अपनी मत मरी पई सी तो की दसा दे चलो बाबूजी के साथ साथ गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे भाई शीतल जी, जिनको कभी हम ऐसे ही कह दे कोई काम करना है या ये कार्य हमारा प्रधान ही है तो हम उठ जाएंगे, उन्होंने टेलीफोन करना, भैया तेरा काम हो गया। हमारे दैनिक सवेरा में प्रधान संपादक शीतल फाइबर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर भाई शीतल जैन समाज कभी भी उनकी सेवाओं को नहीं भूल सकता। वैसे कहा तो सब हो जाता है जहाँ जलंधर सेंटर है मीडिया का, और उसके बावजूद शीतल जी ने इंस्ट्रक्शन दे रखी है लुधियाना जलंधर कहीं नहीं जैन समाज का कोई कार्यक्रम हो, कोई फंक्शन हो तो यदि आपको पता लगे तो बिना पूछे आपने वहाँ चले जाना है, मेरी इजाजत की जरूरत नहीं है। मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपने बिजली शेड्यूल में टाइम निकाला। हमारे साथ थोड़ा सा है उनकी वजह से, इनके बारे में जो भी कहा जाए
कराते हैं, किसी को प्रॉब्लम हो वो भी सॉल्व कर देते हैं। इसी तरह मेरे पास और कोई शब्द है कहने के लिए, मैं फिर आपने बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ की महावीर भाषा सेंटर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ जिन्होंने मुझे चीफ गेस्ट बनाया। महाराज जी साथ ही पूंजी और लक्ष्मी को लक्ष्मी मणि लक्ष्मी मंदिर बता रहे हैं और मेरी बेनती है सब लोगों को वो भी बता रहे हैं। अमृतसर के नोवेल्टी चौक में पूर्व पुलिस अधिकारियों द्वारा एक अहम मीटिंग करते हुए पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा पूर्व पुलिस कर्मचारियों की हर मुश्किल का हल करने संबंधी विचार किया गया। इस अवसर पर पूर्व पुलिस अधिकारी शमशेर सिंह और संजीव कुमार ने बताया कि पूरी जिंदगी पुलिस अधिकारी बनकर लोगों की सेवा करने वाले पुलिस कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आने वाली मुश्किलों से फिर राहत देने और उनके परिवारों को आ रही समस्याओं का हल करने संबंधी पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन का गठन किया गया है, जिसके तहत वे समय समय पर मीटिंगों का आयोजन करते रहते हैं और अब भी वे पूर्व पुलिस कर्मचारियों के हकों के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और इस मीटिंग के बाद जल्द ही पूर्व कर्मचारी एक मंच पर इकट्ठा होंगे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। कुमार अमृतसर तो ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਵਕਤ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੌਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਨਾ ਜਾਣਾ, रिटायर एसोसिएशन का ना जाना, ये साफ यार करता है कि जब तक हो तुम काम के तब तक तुम्हारे नाम हैं, बाद में तुम्हें कौन पूछेगा, तुम तो बदनाम हैं। उस गम नूं दिल च लैके साडे सरदार शमशेर सिंह हरां ने ये बीड़ा चुक्या है। असी चाहांगे कि जिहड़ा बदलाव आवे, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। जिहड़े अज तनंतर बैठे ने कब्जे करके सप बन के बैठे ने, वो सप भी आके इन्हां दे कोल आके रिक्वेस्टां करन। असीं ये नहीं चाहते, साडे मन च नहीं है कि पुरानी एसोसीएशन सानू आके जी करे ना। साडी एसोसीएशन सरदार शमशेर सिंह ने क्लियर कहता है, हम सब एक हैं, एक बराबर हैं, कोई वड्डा छोटा नहीं होएगा, रूटीन की तरह मिलिया करांगे। हर दुख सुख दे विच असीं भाईवाल होवांगे, हर परिवार दे नाल खलोवांगे। जेकर मौजूदा पुलिस अफसर नाल धक्का हुंदा है ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। देखो एक रूटीन मीटिंग है साडी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਰੇ ਰੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਬਾਈਨਡ ਆਪਣੀ ਗੈਟ ਟੂਗੈਦਰ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖ ਲਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ ਆ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਗੈਟ ਟੂਗੈਦਰ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਿਟਾਇਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਵਰ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਲ ਬੀ ਟੋਟਲੀ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਲੀਗਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ ਆ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ होने करके उन्हें कट के सुट दिता गया है। हरियाणा के कृषि क्षेत्र की जी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि में राज्य ने शाक नाशी सहिष्णु HT बासमती चावल की किस्मों का उपयोग कर 1015 एकड़ में सीधे बोए गए चावल DSR की खेती को सफलतापूर्वक
लागू किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा विकसित और नूजीवीडो सीड्स के प्रमुख बीज ब्रांडों PB 1985 गोल्ड स्टार HT और PB 1979 सुपर स्टार HT के माध्यम से वितरित इस पहल से कृषक समुदाय को उल्लेखनीय लाभ हुआ है। DSR पद्धति के तहत HT बासमती चावल को अपनाने से हरियाणा के किसानों को पारंपरिक तरीकों की तुलना में प्रति एकड़ 1.5 से 2 क्विंटल की वृद्धि के साथ अधिक अनाज की पैदावार हासिल करने में मदद मिली है। इसके अलावा इस पद्धति ने महत्वपूर्ण जल संरक्षण में योगदान दिया और खेती के लिए आवश्यक समय को कम किया है, जो कि टिकाऊ कृषि प्रथाओं के साथ संरेखित है। तो वहीं ये पहल हरियाणा सरकार कृषि विभाग, नूजीवीडो सीड्स लिमिटेड, हिसार कृषि विश्वविद्यालय, भारत में कृषि कौशल उत्कृष्टता केंद्र और कार्बन निकासी कंपनी वराह AG द्वारा समर्थित एक सहयोगी प्रयास है। HT तकनीक बासमती धान में DSR को तेजी से अपनाने, चुनौतियों को दूर करने और किसानों को उन्नत कृषि समाधान प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए तैयार है। वहीं हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने एक विशेष प्रस्तुति के दौरान कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर राजाशेखर वुंडरू IAS के साथ अन्य प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में ये बात कही। इस अवसर पर IARI के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर AK सिंह भी उपस्थित रहे। हरियाणा के कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि में राज्य ने हर्बिसाइड टॉलरेंट बासमती धान किसानों का उपयोग करके 1015 एकड़ में धान की सीधी बिजाई की खेती को सफलतापूर्वक लागू किया है। धान की सीधे बिजाई से किसान को सीधे तौर पर 3 फायदे हैं। एक एकड़ रुपये में होने वाले 5,000 रुपये खर्च की बचत है। ऐसे कि 1 एकड़ रुपये में लगने वाले 30-35% पानी की बचत होती है। धान की रोपाई करने की बजाय सीधे बिजाई करने से ग्रीन बायोगैस का उत्सर्जन कम होता है। इसके अतिरिक्त धान की सीधी बिजाई करने पर हरियाणा सरकार द्वारा 4,000 रुपये का बोनस प्रदान किया जा रहा है। मुझे खुशी है कि पिछले सीजन में हरियाणा के किसानों ने सीधे बिजाई कर 191 मिलियन क्यूबिक लीटर पानी की बचत की, जो कि सराहनीय है। इसी के लिए मैं हरियाणा के किसानों को हार्दिक बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि आने वाले समय में हरियाणा के किसान धान की सीधी बिजाई पद्धति को अपनाकर राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दें। गुरु नगरी अमृतसर में 35 वर्ष पुराने भगवान वाल्मीकि जी के मंदिर और उससे सटी दरगाह को सिर्फ इसलिए तोड़ दिया गया क्योंकि ये एक होटल की खूबसूरती के आड़े आ रहा था, जिसे नगर निगम और होटल के अधिकारियों ने मिली भगत से तोड़ दिया, जिस पर नाराज वाल्मीकि समाज ने धरना दिया और ऐसे निगम के अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। इस बारे में बात करते हुए वाल्मीकि समुदाय के नेताओं ने कहा कि पंजाब गुरुओं और पीरों की धरती है और यहाँ गुरु पीरों के मंदिर और मस्जिदें हैं जिनसे लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं। सिर्फ एक होटल की सुंदरता बढ़ाने के लिए इन्हें तोड़ना दुर्भाग्यपूर्ण कृत्य है। ऐसे में भी इस मंदिर को तोड़ने वाले निगम अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। जय संविधान। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਿਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 3 ਵੱਡੇ ਪਾਵਨ ਸਥਲ ਹੋਣ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਤੀਰਥ, ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਟੈਂਪਲ ਤੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦਰਬਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ ਝੂਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। लेकिन अज की किया कारपोरेशन के कुछ नॉनसेंस अधिकारियों ने जिन्होंने अपना पता ही नहीं आ काम करना किदा वा की उन्होंने काम के टीचे आ की उन्होंने गाइडलाइनस है उन्होंने की आन के किया कि एक होटल की खूबसूरती बढ़ाने लिए आन के भगवान वाल्मीकि महाराज के 35 साल पुराने मंदिर नूं जिहड़ा आ
ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੇਅਰ ਲੱਗਣ। ਮੈਂ ਜੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗੂ, ਮੈਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮੰਦਿਰ ਅਜੀਤ ਨਗਰ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ ਅੱਜ, ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਰਗਾਹ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇੱਧਰੋਂ ਲੰਘਣ ਦਿਆ ਸਾਂ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਚ ਮਸ਼ੀਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਰਾਹੁਲ ਮਲਕ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਬਹਿਸਾ ਬਹਿਸੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਫਸਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਤਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿਸਾ ਬਹਿਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਆ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬੀ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਮੂਰਤੀ ਮਾਰਤੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਮੂਰਤੀ ਨਿਕਲੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਸੀ। जय वाल्मीकि जी, जय भीम, जय भारत। मेरा नाम सुमित कालिया जी, मैं आदि वाल्मीकि अंबेडकर महापंचायत संगठन का मुख संचालक हाँ। ਅੱਜ ਜੋ ਘਿਓ ਮੰਡੀ ਦੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵੀ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੁਛ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਬਣਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਔਰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੰਡਿਤ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦਲਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਮਲਿਕ ਜੀ, ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਹੁਣ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੋਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਵਾ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਾ ਹੋਈ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਧਰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾसन ਤੇ ਪੰਜਾਬ सरकार होगी। जय वाल्मीकि। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा जालंधर के साइंदा स्कूल ग्राउंड में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन शुरू हुआ। इस आयोजन का उद्देश्य आत्मिक जागृति के माध्यम से विश्व शांति और आध्यात्मिकता का प्रसार करना है। तो वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ पूजन और यजमानों द्वारा आरती के साथ हुआ। मुख्य यजमानों में ध्रुव मित्तल, शिव मित्तल, राजन अग्रवाल, मंजू अग्रवाल, वरिंदर मलिक, सोना मलिक, अरुण कुमार और दीपिका शामिल रही। इनके अलावा राज्यसभा सदस्य अशोक मित्तल, पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री महेंद्र भगत, मंत्री श्री निवासलू, गौतम कुकरेचा, जेसी अरोड़ा, दिनेश शर्मा, विजय धीमान, लकी रहेजा और ब्रिगेडियर सुनील कुमार जैसे गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया और आरती की रस्म अदा की। वहीं कार्यक्रम का समापन साध्वी पल्लवी भारती, साध्वी शशि भारती और साध्वी कमल भारती द्वारा श्रद्धालुओं का धन्यवाद ज्ञापन और प्रभु की आरती के साथ हुआ। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। आज जो कथा का पंडाल लगाया गया, श्री कृष्ण जी का दरबार लगाया गया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनमोहक और जो भजनों का प्रवाह चला, जो कथा व्यास साध्वी सुश्री वैष्णवी भारती जी ने अपनी ओजस्वी वाणी के माध्यम से प्रसंग का वाचन किया, वो मानव हृदयों को झकझोर देने वाला था। और उन्होंने यही प्रेरणा दी, भगवान श्री कृष्ण जी का कर्म एक लीला है, उसके पीछे गूढ़ रहस्य छिपे हैं और हमें उनकी शिक्षाओं को जीवन में धारण करना चाहिए, तभी हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। तो अभी कार्यक्रम और भी चलेगा, 23 नवंबर तक चलेगा। तो आप सभी शहरवासी जो भी इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमें देख व सुन पा रहे हैं, आप ज़रूर अपने परिवारों को लेकर, रिश्तेदारों को लेकर ज़रूर पहुंचिए। आपका हार्दिक स्वागत रहेगा। जय गोविंद, जय गोपाल। पवित्र बंधन है, बड़ा पुनीत संबंध है, जिससे आगे गृहस्थी बनती है, फिर समाज बनता है, फिर एक सुंदर राष्ट्र का निर्माण होता है।
और ये लिव इन रिलेशनशिप हमारी संस्कृति का नहीं है, हम क्यों अपना रहे हैं? और बड़े सारे युवा कहते हैं कृष्ण राधा भी तो ऐसे थे। श्री कृष्ण जब उन्होंने गोवर्धन को अपनी कनिष्ठिका पर उठाया ना, वो 7 साल के बच्चे थे। मथुरा छोड़ी तो 11 वर्ष के थे, उससे पहले ही रास कर ली थी। एक छोटे से बच्चे के लिए आप ऐसी वासनात्मक दृष्टिकोण रखेंगे? वो तो बालक है श्री कृष्ण, और राधा उनसे बड़ी है आयु में। पुराणों को उठाकर देखिए, पुराण इसका प्रमाण है। राधा जी उनकी भक्त हैं। लिव इन रिलेशनशिप नहीं है, कोई उनका भौतिक संबंध नहीं है, वो तो आत्मा का संबंध है। वो आत्मा की बात है, भक्ति और भगवान की बात। आप क्या लिव इन रिलेशनशिप उन भगवान के साथ जोड़ रहे हैं और एक बस लॉजिक देकर अपने आप को सेटिस्फाइड करने का प्रयास कर रहे नहीं है। इसलिए डिजिटल रिश्तों से हमें बचना है। और असली रिश्ता किसका है? कृष्ण कन्हैया का रिश्ता है। वो पति लोक ब्रह्म लोक के स्वामी, यानी कि वो ईश्वर, वो कृष्ण कन्हैया हैं। अगर उनसे जुड़ जाएंगे ना, उनका कीर्तन करेंगे, उनकी भक्ति को प्राप्त करेंगे, तो आपकी गृहस्थी शांत होगी, आपका क्रोध भी शांत होगा, आपके अंदर भी बहुत सारे गुणों का जन्म होने लग जाएगा, वो धैर्य आने लग जाएगा। इसलिए अपने कृष्ण कन्हैया से संबंध जोड़िए। जिन जपया हरि नाम नारायण तिन की। शनि महाराज की कृपा से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शनि महाराज की 16वीं वार्षिक चौकी रियाजपुरा गली नंबर 1 सेंट्रल टाउन जालंधर में शनि सेवार्थ ट्रस्ट एवं वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से बड़ी धूमधाम से करवाई। इस अवसर पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, विधायक रमन अरोड़ा, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, पूर्व विधायक मनोरंजन कालिया, कांग्रेसी नेता पौंटी राजपाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त किए। इस अवसर पर सभी गणमान्यों को शनि कृपा मूर्ति ईशु महाराज ने चुनरी देकर सम्मानित किया। इससे पहले आए हुए गायक कलाकारों ने हाजिरी लगाकर सारे क्षेत्र को शनि महाराज के रंग में रंगा। इस अवसर पर संजीव गुप्ता, परमजीत, उत्तम, दीक्षांत भगत, राहुल नारंग, मोहित मरवाहा, जतिन मरवाहा, कुलदीप कुमार, सुजल चुग, अमित टंडन, शिवम चौधरी, हनी बुद्धि राजा शामिल रही। तो वहीं भक्तों के लिए लंगर प्रसाद के रूप में चल रहा गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। कोई पार्टी नहीं है, असं सारे परिवार का एक हिस्सा जो सारे मिलके आप सेवा करते हैं। तो शनि महाराज के चरणों से वंदना भी लगा दो, हाजरी भी ला दो। वो सारा जग करदा वडियाई, मैं लाडला चिंता पुरनी दा। सारा जग करदा वडियाई, मैं लाडला चिंता पुरनी दा। जग करदा वडियाई, सारा जग करदा वडियाई, मैं लाडला चिंता पुरनी दा। सारा जग करदा वडियाई, लाडला चिंता पुरनी दा। मैं आस मैया जी तो लाई, मैं आस मैया जी तो लाई, मैं लाडला चिंता पुरनी दा। जग करदा वडियाई, मैं लाडला चिंता पुरनी दा। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी
तालाब मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भजन गायक अशोक शहजादा एंड पार्टी कपूरथला वालों ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की, जिसके बाद भजन गायक ने मां की सुंदर भेंटों का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस अवसर पर श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, अवतार गब्बी, साधुराम कालिया, सेवादार मास्टर हरिचंद, शिव सहगल, कपिल सहगल ने गायक अशोक शहजादा एंड पार्टी कपूरथला वालों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन प्रांगण में स्थित ट्रस्ट महाकाली मंदिर में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भजन गायिका बेबी कशिश सन्याल एंड पार्टी ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की। इस अवसर पर मंदिर कमेटी के सदस्य योगेश्वर शर्मा, अशोक सोपती, नरेंद्र सहजपाल, चंदन मोहन डिंगरा ने भजन गायिका बेबी कशिश सन्याल एंड पार्टी को मां की चुनरी देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर संजीव साहनी, सोहनलाल, किरण कुमार, राजेंद्र मदान, यशपाल, गोवर्धन गोंधी, नरेंद्र शर्मा सहित असंख्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। दर्शन कौर आहूजा अपनी संसारिक यात्रा पूर्ण कर वाहिगुरु जी के चरणों में जा भी राजी हैं। उनकी आत्मिक शांति हेतु भोग एवं अंतिम अरदास का आयोजन गुरुद्वारा सिंह सभा मॉडल टाउन जालंधर में किया गया। इस तरह रागी जत्थों ने वैराग में कीर्तन कर स्वर्गीय दर्शन कौर आहूजा की आत्मिक शांति हेतु अरदास की। इस मौके पर पारिवारिक सदस्यों सहित शहर के सामाजिक, धार्मिक और व्यापारिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय दर्शन कौर आहूजा को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से।
जालंधर के पठानकोट बाईपास के नजदीक ट्रक और कार में हुई भीषण टक्कर, 4 लोगों की मौत, 2 घायल। तरनतारन के गांव लालू घुमन में पंचायती चुनाव की रंजिश के तहत मौजूदा सरपंच की गोली मारकर की हत्या, 1 घायल। भगवान महावीर जैन आराधना केंद्र ने श्री महावीर जैन भवन में करवाया 50वां संयम स्वर्ण समारोह संयमोत्सव। दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज और लुधियाना के प्रसिद्ध उद्योगपति जवाहर ओसवाल की बतौर मुख्य अतिथि शिरकत। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।